was BIA थी हमारा BIA जो कि हम लोग इसको Venture Park, our incubation center is named as Venture Park. So we are also one of the members. Recently we got fund from DPIT also for that Startup India fund is there. So we are trying to help out all incubating whoever is associated with us. हमारे यहाँ से mostly जो भी startup है they are in early stage and most people are in there in agri sector है, education में है, SaaS, everything, whatever you say, all field we are having a startup. So I think अब ज़्यादा मेरे को नहीं बोलना है. I think I should hand over mic to Mr. Anubhav and he will lead from here onward. Thank you, sir. Thank you, Subodhji, and thanks, Vikrant, for joining the session. So the format would be like I have a bunch of questions for Vikrant, and Vikrant also will might shoot you for the incubator and accelerator side, and we'll wrap that up, and we will quickly open for Q&A because we want to interact with the audience there more. So maybe in half an hour we'll be done with our Q&A, and then we will open the floor for questions from the audience. So right now, right now we are at 3:07. So maybe by 3:30 or 3:35 we will be done, and post that we'll open for questions. So, so Vikrant, any initial question, any initial thoughts that you would like to talk about? A quick, maybe a 1 minute, 2 minute intro of SucSEED, what SucSEED does, what kind of startup SucSEED supports, and then I'll go ahead with my questions. Yeah, sure. And probably we'll do a mix and match of English and Hindi to make it. Yeah, that would make it more interesting. Yeah, interactive for the audience. So SucSEED Innovation is an early stage fund. It invests into companies which they are at an incubator stage. We started with IIIT Hyderabad as a IIIT Hyderabad early stage seed fund. That's where it took a larger shape. We had a good result from the companies. वहाँ की हमने जितनी companies जो incubation के लिए आती थी, we started to select in them and started to put in money early stage to support them. जब वो cool, sexy नहीं होती हैं, उस वक्त उनको support करने के लिए, you know, there is no fund in the market. So we thought we will create a structure, and we had a good result. We had made investment into 10 companies, and those 10 companies, 6 out of those 10 gave us an exit within 2.5-3 years. And that goes to show कि early stage segment के अंदर भी हम support कर सकते हैं. अगर वो ऐसे environment से आ रहे हैं जहाँ उन company की curation industry centric support system से आ रहा है, तो वो कंपनी भी तेजी से ग्रो कर सकती है. एंड विच इज़ वेयर आवर हाइपोथेसिस गॉट वैलिडेटेड कि अच्छे इंक्यूबेटर्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो अर्ली स्टेज कैटेगरी के साथ भी रिस्क लिया जा सकता है, एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर वुड आल्सो कम ओके. विद दैट वी केप्ट द फंड इन माइंड, टुक एन अप्रूवल फ्रॉम सेबी, और ये सेबी अप्रूव्ड फंड है, 100 करोड़ का फंड है, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर द कैटेगरी दैट वी आर सपोर्टिंग. We are hoping that we'll be able to support around 50 companies through this fund. 80 investment rounds in those 50 companies, which means it will start early with a lesser capital, and gradually as the company will start to do good, we'll increase our investment amount from 50 lakh to 2 crore to going up to 7.5 crore. So overall in a company, we can collectively put in up to 10 crore maximum. अगर वो company हमारे साथ अच्छा grow करती है, and if we like the way the company is shaping up. So the relationship will start early at an early stage, but it can grow very deep as the company evolves, which is the beauty of structuring these funds, where a large capital could go towards the later part of the growth. So I hope this information and introduction of SucSEED would help. हमारे 6 sectors हैं जिनमें हम focus करते हैं. You'll find them on our website, but EdTech is definitely one of them. So happy to find some good companies in EdTech, FinTech, HealthTech, and in the technology-centric area, except that AgriTech is not one of our focus areas, but I'm sure if we find something interesting, we'll create a mechanism to even invest into an AgriTech company one way or the other. Thanks, Vikrant. That shows how flexible as a fund you are to support innovation in the
nation, also going into the domains where you have not fundamentally thought of, but ready to explore ideas there also. A quick introduction about myself and on the organization. I'm Anubhav. I work for IIIT Hyderabad. We have India's one of India's largest and the oldest academic incubator. When we say academic incubator, it means that it was set up in an academic institution. IIIT Hyderabad is a deep tech research organization which offers postgraduate and undergraduate courses in the technology domain. CI was started back in 2008, and we have almost reached our 14th year now. And it has been amazing journey so far. More than 450 plus startups we have supported, enabled in different ways, and through grants and equity, we have put in money in approximately 50 companies. Bunch of them, at least 50%, or I would say, are almost 50%, along with SucSEED, which was, as Vikrant said earlier, Vikrant and all were running something called IIIT Seed Fund. So our focus is into three specific: deep tech, med tech, and social tech. And for all these initiatives, we have separate incubators, but all under one umbrella called CI, Center for Innovation and Entrepreneurship. So currently, the incubator, from the incubator in this year, we have 102 startups working out of the incubator. And this year funding would be somewhere around 5 to 6 companies there. So usually in each year we invest in 3 to 4 companies, but we want to take it to, at a bigger pool. Our focus is also on technology translation through, research translation and productizing research, taking the research from lab to land. So there also we have seeded companies which are into the sports analytics domain, natural language processing, information extraction, those kind of researches, academic researches that has happened. Our product lab helps them to convert into a product and then eventually make it a startup and get back in the startup ecosystem. So that's a quick intro. Now, without doing further delay, I would shoot the first question to Vikrant. Now, this is our agenda. When I was discussing with Subodhji, our agenda was to help startups that are from from Bihar to understand what a VC looks into, what a VC looks into when it is evaluating a startup, and what are the characteristics and overall evaluation criteria and other things. So Subodhji, there is somebody by the name Bihar Cabs. Can you get them muted, please? Yeah, thank you. There was a lot of noise from that account. Okay, so Vikrant, how do you differentiate? See, as investments were happening in businesses before also. The concept of investment has been through debt or other instruments. People were investing, and even private investors were investing in businesses. So how do you differentiate this whole phenomena of startup and traditional business when you're evaluating a company? And what comes, even if a traditional business is profitable, it might not be of your interest to invest in it. So how do you differentiate that? What comes into a VC's mind when it takes a look at a startup or a traditional business? It's a good question to open the conversation, Anubhav. So, agar aap dekhein how industry has been defining the definition for startup, it has been missing. Even अगर आप MSME और startup के बीच की definition का difference देखेंगे तो government does not make some of those distinction very easy for us to differentiate. But at least in the venture capital industry's parlance, any company which can grow potentially with a 20% month-on-month growth, right? And that rapid growth is something which is worth backing and supporting through a high risk, high reward capital, which is a venture capital, which will fit into the definition for startup.
So very unconventional way to look at it. अगर मोस्टली अगर आप देखें इंडस्ट्रियल एरा में कंपनीज 15 से 20% पर एनम पे ग्रो करती थी. We are now talking about somebody which will grow 20% month on month. And if we are in a business which would disrupt, bring this rapid scale, do things unconventionally, create a solution of a problem statement which conventionally we were not able to solve, those would be done through a company which will be then classified as a startup. इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की क्लासिफिकेशन एमएसएमई की तरह से होती है. उनमें से कुछ लोग स्टार्टअप की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं. एमएसएमई कंपनी के बेनिफिट भी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्टार्टअप के बेनिफिट लेने की भी कोशिश कर रहे होते हैं. That's I think to a large extent because the way we have structured and not created distinction. But when we are looking at those companies, we are looking at purely from that lens कि क्या ये company 20% month on month पे grow कर पाएगी if they get full scale support from everybody. If the answer is yes, we will back that company. Great, Vikrant. That summarizes it. So now you hear a lot of ideas coming to you, a lot of solutions coming to you. Sometimes similar because when the market is big in a particular industry, in a particular domain, a lot of startups try to jump into it. So what do you suggest when somebody is ideating a startup? And from a VC's perspective, what are the things that you suggest to them to look at when they are jumping on this bandwagon of starting up? Yeah, it's an interesting situation. Most of the time we've seen people who bring those ideas to the table which has affected them personally. They're passionate to find a solution for it generally, right? अगर आप किसी सिचुएशन से गुजरते हैं और वहाँ आपको जो चैलेंज देखते हैं, you feel that if I am suffering it, would there be a larger population which would be going through a same hassle, and can I create a solution around it? If ideation happen with that, it's a good idea. Sometime incubators could also run an ideation exercise and identify what are the ideas which are having a large TAM, SAM, SOM, right? TAM stands for Target Addressable Market. वो कौन से solutions हैं जो 100 करोड़ लोगों की population को impact करते हैं, जिनके answers अगर हम ढूंढेंगे तो वो बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने वाले सॉल्यूशंस हैं. आइडियली इस तरह की कुछ चीज़ों को हम सेंट्रल हैकाथॉन्स या इंक्यूबेशन ड्रिवन हैकाथॉन्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. बट द अदर थिंग इज दोज थिंग्स व्हिच कम आउट ऑफ दीज एक्सरसाइज, सेंट्रल एक्सरसाइज माइट हैव a lot of solutions which appear me too. So other than bringing ideation of certain thoughts and solutions around the problem statements which are also visible, there is a possibility that we might actually do this as a part of our journey. अगर कुछ experienced लोग हैं जिन्होंने 5-7 साल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, and if they are seeing those thing as a part of doing day-to-day businesses, then they start to look for alternative way of doing it. और उस alternative way की सॉल्व करने के लिए अगर वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं या डीप टेक के सॉल्यूशंस के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज व्हेन यू आर इन योर रोल विद द कंपनी, you would be doing what your company expects to do on a day-to-day basis rather than look for a disruptive way of doing it. Mostly हम लोग देखते हैं कि अगर corporate role के अंदर एक innovation होता है तो वो एक incremental innovation है. They would always take steps to do 10 to 15% increment in the solution, and that's largely driven around transformation and efficiency gain as compared to doing things completely upright differently. So अगर हम incubators के थ्रू वो solutions ला सकें, disruptive way से नया काम कर सकें, bottom up solution हो, तो वो काफ़ी interesting है और वो सबके लिए अच्छा है. But I think the bigger statement which remains for everyone's consideration is क्या सिर्फ ideation को हम देख रहे हैं या आइडिया को आगे एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी जनरेट करने की बात है. So a lot of time we feel we are funding an idea, whereas idea might be a starting point for us. We ultimately look for कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्या सोल्यूशन लाएंगे और इनके अंदर एग्जीक्यूशन स्किल्स होंगे या नहीं, जिससे ये लार्ज एड्रेसेबल मार्केट को एक्चुअली हैंडल कर पाएंगे. So
This is why if you see we put in a very small capital to begin with. हम आइडिया के लिए कंसर्न नहीं है, उनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहते हैं. ग्रेट. सो हमारे लिए इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में जो हमारा फोकस रहता है, जैसे हमारा फोकस क्योंकि ये एक टेक इंक्यूबेटर है, तो टेक रिलेटेड सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन जिनका जिनको हम सपोर्ट कर सकें, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में और स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारा फोकस डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पे है. तो अगर अगर I mean, and if I am not wrong, I think non-tech related solutions पे भी आप सक्सीड फोकस करता है या फिर ओनली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स पे? हमारा फोकस तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस पर है, बट मार्केट में देयर आर मेनी अदर वेंचर कैपिटल फर्म्स हु वुड डू अ नॉन टेक बेस्ड स्टार्टअप्स आल्सो एज अ पार्ट ऑफ देयर फंडिंग साइकिल. हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर टेक एंड डीप टेक पे फोकस रखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी आर पार्टनरिंग अ लॉट विद दोस इंक्यूबेटर्स जिनके यहाँ पर डीप टेक का या लार्ज टेक का अडॉप्शन चल रहा होगा. But there are a lot of investors in the market who would also pick up solutions which may or may not have a tech component. But it is very difficult to assume कि हम आज की डेट में बहुत सारे solutions को rapid scale पे बिना टेक्नोलॉजी के scale up कर पाएंगे. I think this is where all the companies with tech-based things happen with a larger growth, because from the journey of a million customer to a 100 million customer, this is only possible when you start to use technology. आज आप एक शहर से किसी सॉल्यूशन को लेते हैं और अगर आप 3 साल के अंदर कोशिश करना चाहते हैं कि मैं 50 सिटी में ये सर्विस ऑफर कर पाऊंगा या मेरी डिलीवरी होगी या मेरी प्रेजेंस होगी, वो स्केल अप आप जब ही कर सकते हैं जब उसके अंदर आपने टेक्नोलॉजी एंगल काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया हुआ होगा. अदरवाइज इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू एन ऑर्गेनिक ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ नॉन टेक सॉल्यूशन. इसलिए आप उन कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ है वो देख रहे हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया जा रहा है. बट कंसिडरिंग यू आर रनिंग अ टेक इंक्यूबेटर, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. आपके पास जब बहुत सारी कंपनीज आती हैं या स्टार्टअप्स आते हैं अपने बिजनेसेस को लेते हुए कि आपके इंक्यूबेटर में वो आएँ और उनके साथ करें, या फॉर दैट मैटर हम BIA के इंक्यूबेटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा सा आप एस्पेक्ट भी समझाइए कि आप उन्हें कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे उनके आइडियाज को क्यूरेट करके आगे बढ़ाते हैं. तो हमारा जो अप्रोच है विक्रांत, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक कि आप भी कुछ क्वेश्चन शूट कर रहे हैं मेरी तरफ, सो दैट इंक्यूबेटर वाला भी पर्सपेक्टिव हमारे ऑडियंस को पता लगे. तो हमारा फोकस, जैसे मैंने कहा कि इंक्यूबेटर में तीन तरह की सपोर्ट मैकेनिज्म होती है. और इंक्यूबेटर में पहला जो सपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, जिसमें आपका टेबल, चेयर, एसी, पंखा, प्रिंटर एंड ऑल दोज बेसिक ऑफिस एमिनिटीज. उसके बाद फिर मेकर लैब हुआ या टेस्टिंग लैब हुआ या फिर आपका हार्डवेयर लैब हुआ, ये प्रोवाइड करना. प्लस उनको क्लाउड स्पेस हुआ या टेक रिलेटेड जो हार्डवेयर एस्पेक्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना. तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है इंक्यूबेटर. दूसरा इंक्यूबेटर में आता है आपका सपोर्ट दैट इज रिलेटेड टू मैनेजरियल सर्विसेज. किस टाइप की कंपनी खोलनी है, कैसा लीगल स्ट्रक्चर होगा, कैसे आप अपने एम्प्लॉय का ये करेंगे. और तीसरा है कम्युनिटी, जिसमें हम उनको इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करते हैं या फिर उनको हम कॉर्पोरेट से कनेक्ट करते हैं या फिर उनको हम मेंटोरिंग दिलवाते हैं. तो ये 3 पिलर पे इंक्यूबेशन सपोर्ट होता है. तो इंक्यूबेशन जैसा है उस हिसाब से हमारा वहाँ पे फिल्टरिंग क्राइटेरिया थोड़ी लीनियंट होती है. कोई भी अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइडिया के साथ आ सकता है. इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द इंक्यूबेटर एंड टेकिंग ऑल दीज बेनिफिट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दूसरा है एक्सीलरेटर जिसमें हम फंड करते हैं. वहां पे हमारा फोकस जो फिल्टरिंग का रहता है वो डीप टेक्नोलॉजी रहता है. और हमारा डीप टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन ये है कि अगर IIIT के जो रिसर्च लैब्स हैं, अगर वो किसी भी तरीके से इन स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं अपना टेक्नोलॉजी सोल्यूशन या जो एल्गोरिदम ये लोग बना रहे हैं या जो टेक प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, उसमें अगर हमारे रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स या IIIT के जो लैब्स हैं, अगर वो इनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड
हेल्प कर सकते हैं, तो ही हम इनको अपने एक्सेलरेटर में लेते हैं, क्योंकि वो हमारी बेसिक कैपेबिलिटी, हमारी मेन कैपेबिलिटी और हमारी स्ट्रेंथ वही है कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से हेल्प करें प्रोडक्ट को, उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो उन सब स्टार्टअप्स को हम एक्सेलरेटर में लेते हैं, और एक्सेलरेटर में जो स्टार्टअप आते हैं उनमें हम फंडिंग करते हैं। और सक्सीड हमारा, इट इज वेरी वेल नोन कि सक्सीड ही हमारे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं। तो ट्रिपल आईटी कुछ फंड डालता है, कुछ सक्सीड डालता है, तो ओवरऑल किटी वो 30-40 लाख की एक इनिशियल सीड फंडिंग मिलती है बेस्ड ऑन माइलस्टोन। आप जैसे जैसे अचीव करते हैं वैसे वैसे आपको ट्रांचेस में वो पैसे रिलीज होते हैं। तो एक्सेलरेटर का वैलिडेशन तो पूरा एक पैनल बैठता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कमिटी रहती है, इन्वेस्टर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, और इंडस्ट्री लीडर्स रहते हैं, जो कि ये समझते हैं कि ये ट्रिपल आईटी के एक्सेलरेटर के लिए ये पर्टिकुलर, हाँ, सो ये ट्रिपल आईटी एक्सेलरेटर के लिए पर्टिकुलर स्टार्टअप रेडी है या नहीं। तो वो हमारा फोकस रहता है वहां पे क्यूरेट करने का। इंक्यूबेटर में हमारी फिल्टरिंग क्राइटेरिया यही रहती है कि सर्विसेज कंपनी ना हो। हम ज्यादा सर्विसेज कंपनी पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो कनेक्ट भी होते हैं वो ज्यादातर B2B स्टार्टअप या बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे इनेबलमेंट भी ज्यादा होता है, वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ भी है कि कॉर्पोरेट, जैसे विक्रांत की हिस्ट्री है बैंकिंग और रिस्क में, तो विक्रांत के जो नेटवर्क होंगे वो टू कनेक्ट विद बिग private banks, if your startup is providing some solution or building some solution for banks, those kind of strength, Vikrant and people like them who are on the mentor panel also will help. तो हम जहाँ पे उनको जिस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में B2B में हेल्प कर सकते हैं, वो सब स्टार्टअप्स को हम इनेबल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्यूरेशन क्राइटेरिया ये है ना। ये एक बड़ा चैलेंज भी है विक्रांत, कि कोई भी स्टार्टअप के जो आइडिया है उसको हम किस लेवल पे क्यूरेट और वैलिडेट कर सकते हैं। तो हमारा तो मैकेनिज्म ये है। आपका भी कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, या फर्स्ट इनिशियल लेवल ऑफ फिल्टरिंग के लिए इतना तो बेसिक होना चाहिए टू इवन क्रॉस द फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कमिटी? हाँ, तो बहुत सारे वीसी फर्म्स हैं जो इस पूरे डिसीजन को वैलिडेट करने में 6-8 महीने लगाते हैं। और अर्ली स्टेज की कंपनी के लिए बहुत समय तक आप डिटेल्ड वैलिडेशन कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर आइडिएशन कर रहे हैं। इनिशियल थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें शेप अप होती हैं समय के साथ, एंड विच इज़ वेयर वी आर ओके टू टेक अर्ली रिस्क। और अगर वो ऐसे इंक्यूबेटर के थ्रू आ रहे हैं जहाँ पर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है कंपनी को पास में हेल्प करके ग्रो कराने की, तो हमारे को ये कॉन्फिडेंस होता है कि इनको पता है कि एक आइडिएशन स्टेज की कंपनी को ग्रूम करके कैसे ग्रो कराना है। एंड दैट्स वेयर वी टेक रिस्क विद देम। आवर रिस्क इज लिमिटेड बिकॉज वी आर पुटिंग लिमिटेड मनी। ट्रांच बेस्ड पेमेंट होने से और हमारा रिस्क मैनेज रहता है। अगर वो अपने माइलस्टोन, उन टाइमली माइलस्टोन्स के, अगर अपनी प्रोग्रेस उन माइलस्टोन डेट्स के अंदर अचीव कर पाते हैं, दिस इज वेयर दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि उनको प्लान करना आता है, एग्जीक्यूट करना आता है। और यहीं से ग्रेजुअली आप जब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है, तो आप उस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की मार्केट परफॉर्मेंस के बेसिस पे समझते हैं कि ये ठीक चल रहा है। गाइस, कैन वी म्यूट ourselves? There is a lot of background noise. Thank you. So I guess इसकी जो ग्रुप की सेटिंग है वो इस तरह से हो सकती है कि everyone who joins new always starts with mute. जब आप इस तरह से करेंगे तो there would never be an issue of noise interfacing. Anyway, coming back, हम लोग जो वैलिडेशन की बात कर रहे थे, तो ट्रांच बेस्ड पेमेंट, माइलस्टोन बेस्ड रिव्यू, इन चीज़ों को करने से हम अर्ली स्टेज कंपनी के अंदर ग्रेजुअल इंटरवेंशन अपना बढ़ा सकते हैं। और अगर उस कंपनी की ग्रोथ ठीक हो रही है तो आप देन ग्रेजुअली यू पुट इन डीप डाइव इनटू द कंपनी। उसके ऊपर 6-8 महीने जब आप एसोसिएट करते हैं, दिस इज वेयर यू मेक अप योर माइंड कि आप इस कंपनी के साथ लार्जर एसोसिएशन स्टैब्लिश करना चाहेंगे या नहीं। सो आवर वैलिडेशन हैपेंस ऑन द वे, whereas other investors would do it in a desktop environment 6 to 8 months before issuing the first check. So that's the difference. विक्रांत, जब आपके पास किसी एक इंडस्ट्री के पर्टिकुलर कॉमन आइडियाज आते हैं जिनमें आप प्री इन्वेस्ट कर चुके हैं,
what are the basis on which you would like to consider more startups in that similar domain where you have already invested? और वहां पे आपका thinking process क्या रहता है? Like you outrightly say no, we have invested and we are not looking for one, or you are exploring more ways to how these two can complement each other, or your portfolio can complement each other? ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हमें काफी काफी हद तक ये वी सी इट रेगुलरली। मी टू कैटेगरी है हमारे लिए ये, कि वो उस कैटेगरी में ऑलरेडी लोग हैं और उसी मी टू सेगमेंट में नए प्लेयर आ रहे हैं, या तो वो डिफरेंट रीजन में उसको ऑफर कर रहे हैं, एंड वी नो दैट दे विल कंटिन्यू टू कीप द रीजनल डिस्टिंक्शन इंटैक्ट, राइट? कि एक साउथ में ऑफरिंग दे रहा है और एक नॉर्थ में दे रहा है या नॉर्थ ईस्ट में दे रहा है, एंड इफ वी नो कि उनके एक्सपेंशन प्लान नेशनल लेवल के नहीं है, there is a large market across those regions and they would be okay, or if somebody is offering it in Middle East and others are offering in India, those are okay, right? And we are seeing now in certain segment we are focusing on Asian market, और India के अंदर जो already experiences थे उनको हम उन कंपनी पे ओपन करने के लिए तैयार हैं जो एशिया में उन चीज़ों को लॉन्च करना चाहते हैं, since we already have an experience of how those have worked. The only thing is we may or may not have an ability to control the market dynamics of that country, and hence क्या हम उस country को उतना timely assess या मदद कर पाएंगे अगर उसमें कुछ changes आते हैं. So one factor is clearly if there is a geographical, if there is no geographical overlap and then those companies. Second is जो आपने complement वाली बात बोली कि क्या वो उसका solution इस नई technology के साथ निकाल रहे हैं over a period of time, जिसका बेनिफिट पुरानी कंपनी को भी मिल सकता है if we create a JV over a period of time and stuff like that. तो हम देखते हैं कि कहीं सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं क्या. सबसे बड़ी इशू आती है जब दो कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपनी माइनर पिवट करके एक दूसरे के एरिया में इंटरफेस कर जाती है. वो बहुत मुश्किल है कि शुरू किया डिफरेंटली, बाद में एक से हो गए, एंड देन व्हाट डू यू डू, राइट? यू कांट हेल्प, यू मैनेज इट टैक्टिकली, बट वहाँ हम लोगों ने देखा है, और अभी कोविड के वक्त में काफ़ी सारी कंपनियां एडटेक की कैटेगरी में सर्टेनली हैव बीन पिवटिंग, और वो पिवट करके जहाँ हार्डवेयर बेस्ड एक्टिविटी कर रहे थे या सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जा रहे थे, स्टेम एजुकेशन के बॉक्सेस जा रहे थे, जब आप बॉक्सेस नहीं बेच पाएंगे तो बिजनेस को कैसे चलाएंगे, तो सारे लोग सॉफ्टवेयर सेंट्रिक पर आ गए, ई लर्निंग पर आ गए. दिस इज वेयर दे ऑल स्टार्टेड टू क्रिएट अ कंफ्यूजन अमंग्स आवर एंटायर पोर्टफोलियो. सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, बट हम अभी तक मैनेज करते आ रहे हैं. ग्रेट. विक्रांत, एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जब ये आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट करते हैं, और या मोस्टली these young kids after college they start, or somebody who after working in the industry for some time starts their own business. ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है, इनिशियल वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करना है. जब आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं तो आप बहुत बहुत हाई फ्लाइंग वैल्यू पे भी ना दिखें और अपने आप को अंडर वैल्यू भी ना करें. तो उसका कोई एक बेसिक थंब रूल है क्या कि इसके बेसिस पे आप अपनी वैल्यूएशन डिसाइड करें अगर आपने पहले फंड रेज नहीं किया हुआ है तो अगर आप अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं वीसी के पास, तो इस बेसिस पे आप अपना वैल्यूएशन डिसाइड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक भी लगेगा, ना ही बहुत हवेबाजी वाला बहुत बड़ा वो लगे, ना ही आप उसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं. हाँ, सो यूएस के अंदर अगर आप देखें जहाँ से ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक शुरू हुई थी, यूएस में हर पहली कंपनी जब शुरू होती है तो वो उनका इनिशियल वैल्यूएशन $5 to $10 million होता है. $1 से $1.5 million वो रेस कर रहे होते हैं, 15-20% की वो डाइल्यूशन करते हैं. इंडिया में जब आते हैं तो वही स्टार्टिंग पॉइंट इनका ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि $500,000 to $1 million की रेंज के अंदर कहीं होता है. और इसका रीजन प्योरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकाल लीजिए या वैल्यू ऑफ द करेंसी से निकाल लीजिए, जो चीज़ जहाँ जितने रुपए में आप खरीद सकते हैं, आई थिंक लॉजिक वहीं से निकलता है. And that is why sometimes investors find it very easy to see that the companies which originated from emerging markets like India, they would have a greater appeal for them for funding in the later on. क्योंकि US के हमारी कंपनी और उनकी कंपनी अगर एक सा काम कर रही है, there would definitely be a 3 to 4x worth of difference in valuation. So they will always like to invest in emerging market companies gradually for finding a better value.
एज लॉन्ग एज दे फील कि इसके पास अपील है पूरी ग्लोबल कैपेबिलिटी और ग्लोबल एक्सपेंशन करने की। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फाउंडर भी उतनी स्मार्टनेस से ग्लोबल एक्सपेंशन करने के लिए तैयार हो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ एन अर्ली इन्वेस्टमेंट, अगर $500,000 1 मिलियन के बीच की डिस्कशन से शुरू करेंगे तो फाउंडर हमेशा चाहेगा कि उसको 8-10 करोड़ की मिनिमम वैल्यूएशन मिले। इन्वेस्टर हमेशा सोचता है कि यार अभी आपका प्रोडक्ट शुरू नहीं हुआ, बिजनेस शुरू नहीं हुआ, प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं, पूरी तरह शेप लिया नहीं, 10 करोड़ और 8 करोड़ की वैल्यूएशन में किस बेसिस पे दे दूं, राइट? सो दैट्स टू डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ अ सेम प्रॉब्लम। दोनों अलग अलग छोर पे खड़े हुए लोग हैं, अपने अपने निगाहों से उसको देख रहे हैं। And that is where we say there is not science to begin with, because there is no data, there is no evidence that the founder is an ability to actually launch a company and run the company at that size. इसलिए उस डिस्कशन को शुरुआत में आप साइंस से तो डील नहीं कर सकते, आर्ट और टेक्टफुली आप डील कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी जगह पर लोग अर्ली स्टेज इंक्यूबेटर में, हम लोग IIIT टीम के साथ भी इसी तरह से करते हैं कि हम उन्हें कन्वर्टेबल नोट्स पे दे देते हैं, ये कहते हुए कि भी फ्यूचर में जब आपकी वैल्यूएशन कहीं स्टैब्लिश होगी बड़े लेवल पर, तब आप हमारी वाली इस राउंड को उसकी डिस्काउंटिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। सो वी विल नॉट डिफाइन योर वैल्यूएशन नाउ, विल गिव यू लेट्स से 30-40 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस प्योरली विद योर डिस्काउंटिंग टू फ्यूचर राउंड। अगर आप अगले राउंड में 50 करोड़ की वैल्यूएशन ला सकते हैं तो अच्छी बात है, हमको 30% का डिस्काउंट पे उसको ऑफर कर दीजिएगा विद सर्टेन कंडीशंस ऑफ कैप एंड फ्लो। So sometime convertible notes, some people call it, CCD, CCPS, or whatever it is, the nomenclature which you're using, is a good way to really keep the conversation simple, make it easy for a founder to raise capital, and similarly for incubation and investment platforms to keep doing larger work rather than getting stuck into a valuation conversation, because that's never easy. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी को मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलता है, उसका प्रोडक्ट अगर तेजी से ग्रो करता है, एंड नेक्स्ट स्टेज इन्वेस्टर उसके ऊपर तो आपके डेटा और ग्रोथ को देखते हुए एक प्राइस पॉइंट लगा सकता है। सी आगे जाके जब आपके पास रेवेन्यू होता है तो रेवेन्यू मल्टीप्लायर आ जाते हैं, जीएमवी होता है तो जीएमवी मल्टीप्लायर आ जाते हैं, 3 साल के नंबर्स होते हैं तो आपका प्रोजेक्शन डेफर्ड कैश फ्लो मेथड से निकल आता है, राइट? सो लॉट ऑफ दिस हैपेंस व्हेन यू हैव डिसेंट डेटा पॉइंट। जब आप पहले साल के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। This is where valuation in first year and second year typically is more emotion management than scientific data management. Great. That brings me to my that's my last question here. So Tuboji, the flow, as I promised, within half an hour we will be done. So it's 3:37. We started at 3:07. So any questions we are open to take from the audience now that we have at least 10-15 minutes. So we would be, feel free to answer any of these questions that are coming across. हम लोग तो अपने बातचीत करते रहेंगे, बट अगर आप लोगों के क्वेश्चन भी आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो हमारा जो आपने जो लास्ट जो ये वैल्यूएशन वाली जो बात की है, मोस्टली हमारे यहाँ स्टार्टअप का यही इशू रहता है कि अभी एक रिसेंटली वी हैड वेरी गुड सेशन, और वहाँ क्या हुआ कि सब स्टार्टअप ने अपना वैल्यूएशन इतना ज्यादा कर दिया कि उनको जो फंड मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। तो एक ये बड़ा पर्टिनेट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक मतलब चिकन और एग वाली कहानी है। स्टार्टअप को लगता है कि पता नहीं मेरा क्या वैल्यूएशन होगा, और ये हम लोग से भी ये दिस क्वेश्चन एवरी टाइम पीपल आर आस्किंग सर आपको क्या वैल्यूएशन करना है। नंबर एक ये है। दूसरा है कि कितना हाउ मच शेयर आई शुड डाइल्यूट। सपोज कि स्टेक अभी मोस्टली जो है तो आईडीएसएस से थोड़ा ऊपर स्टेज है, थोड़ा रेवेन्यू भी आ रहा है, उनको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे मोस्टली स्टार्टअप के साथ है कि दे आर सो पैशनेट विद देयर आइडिया कि वो थोड़ा भी उसमें डाइवर्ट नहीं करना चाहता, वो हिलना नहीं चाहता है। एंड सेकंड जो इशू आती है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक अनुभव ने उठाया है सर, और हमको लगता है कि इसमें थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए हमको आपसे सर। कैसे मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी स्टार्टअप के दिमाग में क्या मेरा वैल्यूएशन होगा, वेदर 10 करोड़ या क्या है। ये कोई सपोज से कोई अगर कोई ऐसा कोई थंब रूल हो, सपोज मेरा सेल अगर सपोज 3 करोड़ का मेरा सेल है, तो क्या हम उसको 30 करोड़ का वैल्यूएशन पे लेके जा सकते हैं कुछ सेल्स रेवेन्यू से, या ऐसा कोई थंब रूल अगर हो सर तो इट विल बी रियली हेल्प टू मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप। तो ये पहला क्वेश्चन तो मेरा वही कंटिन्यूएशन आपके साथ है।
ये बिल्कुल अच्छा अच्छा आपने पॉइंट उठाया सुबोध जी। और ये सारे इंक्यूबेटर्स या सारे मार्केट फेसिंग एजेंसीज जो स्टार्टअप्स को हेल्प करती हैं, एक चाय हमारे लिए भी बोल दीजिएगा प्लीज। श्योर सर, नेक्स्ट टाइम वी विल लव टू यू हियर, आपको फिजिकली बुलाएंगे सर यहाँ। थैंक यू। सो ये एक कांस्टेंट पॉइंट है जो सारे लोग महसूस करते हैं। जो आपने मैंने भी बोला था ना, आई गेव अ हिंट बट आई बी स्पेसिफिक। जैसे आपकी अगर आई मीन किसी स्टार्टअप की अगर रेवेन्यू और जीएमवी अगर क्लियरली डिफाइंड है, जो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका किस तरह का बिजनेस है, कुछ लोगों का जीटीवी होगा, कुछ का जीएमवी होगा, और कुछ का प्योरली रेवेन्यू होगा। मार्केट के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्टार्टअप की एनालिटिक्स रन करते हैं, जिनके अंदर स्टार्टअप की पूरी 20-25 साल की हिस्ट्री होती है इंडिया की और ग्लोबली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन सब के अंदर मल्टीप्लायर्स विजिबल नहीं होते बट स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं डेटा पॉइंट्स के थ्रू। अगर मैं 6, 8, 10 कंपनी के डेटा पॉइंट्स अगर एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये क्लियर डेटा पॉइंट्स होगा कि अगर आप ई कॉमर्स की कंपनी है तो आपका जीएमवी पर मल्टीप्लायर क्या होगा वैल्यूएशन आने के लिए। अगर आप हेल्थ टेक सेंटर कंपनी है तो आपके मल्टीप्लायर क्या होंगे रेवेन्यू पर। अगर आप हार्डवेयर की कंपनी है और अगर प्रोड्यूस कर रही है इतने यूनिट्स और इतना वॉल्यूम, तो आपके पास कितना मल्टीपल होगा। लार्जली ये नंबर 2x टू 10x चलता है, डिपेंड करता है कि आप जीएमवी नंबर उठा रहे हैं या रेवेन्यू उठा रहे हैं। अगर आप जीएमवी उठा रहे हैं तो 2.2x 2.5x तक चला जाता है। रेवेन्यू उठा रहे हैं तो 7x 6x से लेके 10x तक चला जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पास्ट का पिछले 2 या 3 क्वार्टर का नंबर कितने रेट ऑफ ग्रोथ से बड़ा है। यानी जो हम बात कर रहे थे 20% मंथ ऑन मंथ की ग्रोथ, अगर वो ग्रोथ आ रही है और आप कॉन्स्टेंटली अपने चार्ट्स के थ्रू ये दिखा पा रहे हैं कि मेरा बिजनेस अर्ली स्टेज पर भी 20% से ग्रो कर पा रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आगे भी जाके 20% से ग्रो करेगा। बट अगर पिछले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, if your business has been growing with 20% month on month, then the companies and the fund houses would start to show a lot of interest in funding your company. उस कंपनी के अंदर वो मल्टीपल भी लिबरली लगा लेंगे। उनके पास अगर उनका एक फ्रेमवर्क होगा बट आपकी ग्रोथ दिख रही होगी तो उसके अंदर लिबरल तरीके से भी मल्टीप्लायर दे देंगे। सो उस तरह के एक्सरसाइज अगर आप अपने ग्रुप में कराना चाहें तो ब्रॉडली कर सकते हैं, बट ये अर्ली स्टेज के लिए बहुत एडवाइजेबल नहीं है। होगा क्या कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 करोड़ का जीएमवी है आपकी टीम में किसी बंदे का। अभी तो मैंने सिर्फ जीएमवी वर्ड उठाया है, बट एमआरआर और एआरआर भी होते हैं जिनसे मल्टीपल स्टेब्लिश होते हैं और उनसे भी नंबर अलग अलग निकलता है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर आप फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू उठा रहे हैं या एमआरआर उठा रहे हैं या एआरआर उठा रहे हैं, इससे भी मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। बट अज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ का रेवेन्यू था और 3.5 या 4 करोड़ का उसने वैल्यूएशन एग्री कर लिया किसी इन्वेस्टर से, और उस पूरे प्रोसेस में आप 1 करोड़ रुपए रेस करेंगे, 25% डाइल्यूट करेंगे। सो लॉट ऑफ दिस इज ब्रिंगिंग टू द पॉइंट विच यू वर सेइंग कि पहली बार में कितना रेस करें, कितना डाइल्यूट करें। ये साइंस की तरह से ना डील करें तो बेटर है, क्योंकि जहां इसको हम हार्ड कोड फार्मूला से लगाना शुरू करेंगे वो इक्वेशन खराब करने लगता है, क्योंकि वहाँ ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हम इसको आर्ट ऑफ नेगोशिएशन स्किल के थ्रू करें कि कितनी आपकी रियल रिक्वायरमेंट है। कम पैसे की रिक्वायरमेंट के थ्रू अगर हम बिजनेस को शुरुआत में ग्रो कर सकते हो तो डाइल्यूशन कम होगा। उसको आप पहले फोकस 1-2 साल में ग्रो करने पर ले आते हैं। अगर आप कम पैसों से उसको तेजी से ग्रो करके अपने नंबर्स इंप्रूव कर सकते होंगे तो आगे जाके आपको बेटर वैल्यूएशन मिलेगा, एंड हेंस उतने ही पैसे को रेस करने के लिए आप कम डाइल्यूशन करेंगे। दैट इज एन आर्ट विच पीपल नीड टू लर्न बाय बीइंग इन कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंक्यूबेटर्स। आपके यहाँ के मेंटर्स भी अगर उन्हें इस तरह गाइड करेंगे और वो 2-4 सक्सेसफुल केसेस इस तरह के देखेंगे तो उनके पास एक एक हिस्ट्री और बेंचमार्क भी होगी। अगर आप देखें, हम ट्रिपल आईटी में क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल है वो ये है कि हम कोई वैल्यूएशन एग्री नहीं करते। फ्यूचर की वैल्यूएशन के साथ उनका नंबर लिंक्ड है, और अनुभव आपको उस तरह की डिटेल मोर शेयर कर सकते हैं, जिसमें 30% से 40% डिस्काउंट हम उनके साथ एग्री करते हैं कि भाई आपकी फ्यूचर की जो वैल्यूएशन होगी उस पर आप 30% या 40% का डिस्काउंट हमें देंगे। 12 महीने में फंडिंग हो गई तो 30% डिस्काउंट
और 12 से 24 महीने में फंडिंग हुई आपकी नेक्स्ट राउंड की, तो लेट्स से 40% का विक्रांत, डिस्काउंट। इट वुड बी ग्रेट अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल देके ये डिस्काउंटिंग समझा दें इन लोग को, जी जी। इफ इट इज ओके। व्हाट हाँ डज दैट मीन? से फॉर इंस्टेंस एक स्टार्टअप का एग्जांपल लेके अगर बता देंगे, हाँ हाइपोथेटिकल, सो ये कलेक्ट ये सीसीडीज को समझ श्योर। सो से इस तरह के टर्म में अगर आपने एग्री किया कि भाई 30% का डिस्काउंट ऑन फ्यूचर वैल्यू, 12 महीने में 30% एंड 12 महीने से 24 महीने में 40%, तो जो एग्जाम्पल अनुभव बता रहे थे या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो अगले राउंड में मान लीजिए उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन एक वेंचर कैपिटल फंड के साथ एग्री होती है, लेट्स से 18 करोड़ की वैल्यू पे, राइट। आपका वॉल्यूम इतना बढ़ गया, आपके नंबर्स इतने बढ़ गए कि आपने 15 महीने के बाद मार्केट में आप लेने गए, आपको वेंचर कैपिटल फर्म से 18 करोड़ की वैल्यूएशन ऑफर हुई, और आपने पहले राउंड में जो हमसे 50 लाख रुपए उठाया था, लेट्स से उसका उसका एग्रीमेंट था कि फर्स्ट ईयर में अगर आपने फंड रेज किया तो कोई लेट्स से फ्लोर और कैप नहीं है, फॉर 30% डिस्काउंट है। और अब क्योंकि 18 महीने में हुआ है, जो 12 महीने में नहीं हुआ, तो आपका 40% का डिस्काउंट था, टाइम बेस्ड डिस्काउंट है, क्योंकि आपने ज़्यादा समय के लिए उस पैसे को यूज़ किया और अगले राउंड के लिए। तो इस तरह के टर्म्स लिखे होते हैं। तो अगर आपने 18 करोड़ की वैल्यूएशन पे 40% का डिस्काउंट लगाया, तो लेट्स से 11 करोड़ की वैल्यूएशन आई, राइट। तो पहले वाला जो कैपिटल हमने 50 लाख दिया था, वो 11 करोड़ पे या 10.08 करोड़ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोग उसके अंदर कैप और फ्लोर लगा देते हैं कि भाई कि भले ही आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिले, मेरा कन्वर्जन 10 करोड़ पे हो जाएगा या 8 करोड़ पे हो जाएगा। और अगर आप फंड 24 महीने में रेज नहीं कर पाए, तो लेट्स से हमारा बॉटम हिट हो जाएगा और आप बॉटम पे फिर हमें 2 करोड़ पे या 3 करोड़ पे वैल्यूएशन दे देंगे। सो इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। तो वो उस स्टार्टअप को पहले पहले 2 महीने के अंदर, जब आपकी पहली फंडिंग मिल रही थी, सीड फंडिंग, उस वक्त उनका फोकस वैल्यूएशन के डिस्कशन में पड़ने की बजाय प्रोडक्ट को इवॉल्व कराना, बिजनेस को इवॉल्व कराने पर रहेगा। एंड जब 12-18 महीने के अंदर कंपनी ग्रो कर चुकी होगी और सफिशिएंट ट्रैक्शन आ चुका है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, and ये सब करते हुए, तो देन इट इज इजियर फॉर देम टू देन कमांड अ बेटर वैल्यू। एंड जो पहले राउंड का पैसा था, वो उन शर्तों पे जो है कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आई कुड गिव यू अ पर्सपेक्टिव, बट हैप्पी टू डबल क्लिक ऑन। जनरली मैं वाइट बोर्डिंग एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जिसमें 4 या 5 रेंज के अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे, बट दैट कुड बी फॉर आवर नेक्स्ट सेशन, जिसमें आप सुबोध जी विक्रांत जी को चाय पिलाएंगे और बिहार बुलाएंगे। नहीं नहीं, we can do a whiteboarding on Zoom also. We will request you to come physically here, sir. Of course, In of fact, course, we are of course. some very good promising startup is there, sir. We want to connect with them, sir. Sure, सुबोध जी। So Yes, अभिनव शुक्ला जी ने एक मैसेज डाला है चैट विंडो में, ये कहते हुए कि क्या हम सोशल टेक्नोलॉजी या सिविल टेक के बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। सो हमारा सक्सीड का सेगमेंट के अंदर सोशल टेक नहीं आता, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, हमारा सोशल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट एनी बिजनेस विच इज फॉर प्रॉफिट, राइट, एक है नॉन फॉर प्रॉफिट कैटेगरी जिसमें हम नहीं है, बट अगर हम फॉर प्रॉफिट कैटेगरी में होगा तो उनके अंदर फंड करते हैं। बट हमारे 6 सेक्टर काफी क्लियरली डिफाइंड है जिनके अंदर हमारा फंड लार्जर इंटरेस्ट लेता है। उसके अलावा जितने सारे सेक्टर्स हैं जो उन 6 सेक्टर्स के अलावा बाहर बैठते हैं, उनको हम एंजल नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट कर देते हैं। सो द ओनली कंडीशन बिटवीन एन एंजल नेटवर्क एंड फंड इज कि एंजल नेटवर्क जब पैसे लगाते हैं तो उनको रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप्स जो हैं पसंद आते हैं। फंड हाउसेस जो हैं वो अर्ली रिस्क लेते हुए प्री रेवेन्यू या अर्ली रेवेन्यू या बिफोर रेवेन्यू वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। वेरएज जब एंजल इन्वेस्टर्स एंजल नेटवर्क के थ्रू पैसा लगाते हैं तो उनको रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी ज़्यादा भाती हैं। थैंक यू विक्रांत। तो ये कोई बिहार कैब्स नाम से हैं, लॉग इन किए हैं, उनको क्वेश्चन पूछना है। कैन यू अनम्यूट लाइन? हाँ जी सर, बोलिए। ये क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टअप किया और फर्स्ट स्टेज में मुझे ये नहीं पता था कि बिहार के नाम पे कोई भी अगर आप नाम रखते हो तो वो आपको नहीं मिल रखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग किया तो हमने बिहार कैब सर्विस हमारी और बिहार कैब के नाम से रख दिया।
मेरा ये सोचता है कि बिहार के लोगों को ये ज्यादा पसंद आएगा, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिहार से बाहर रहते हैं वो एक नाम को सुन के भी हमारी तरफ आकर्षित होंगे। पर जब हमने सीएम अप्लाई किया, ट्रेडमार्क अप्लाई किया, वहाँ मुझे वो रिजेक्ट हुई। और अब मेरे साथ काफी प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ मेरी कंपनी ग्रो करी है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, आए दिन कोई ना कोई अपने यूआरएल में बिहार डैश डैश रख के उस नाम को ऐड करता जाए, जिससे मेरी कंपनी का जो ग्रोथ है वो रुक रहा है। अब मैं इसको कैसे करूँ? ट्रेडमार्क क्या फिर से मैं ट्रेडमार्क अप्लाई करूँ या क्या करूँ जो मुझे ये सीएम मिल जाए, और कैसे करूँ? क्योंकि मैंने कंपनी को 4 साल से ऊपर हो गया है, मैं एक नाम को लेके चल रहा हूँ। ट्रेडमार्क के इश्यूज मोस्टली इसीलिए कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसीलिए वो शहरों के नाम पे या कंट्री के नाम पे बने हुए बिजनेसेस को ट्रेडमार्क इसलिए देना नहीं चाहते क्योंकि उनको रेप्लिकेट करना आसान होता है और काफ़ी सारे लोग इस तरह से करते हैं। मैं सजेस्ट आपको ये करता हूँ कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप भी अपना नाम समय के रहते हुए चेंज कर लीजिए और उसका ट्रेडमार्क अपने हिसाब से रख लीजिए और उसे ग्रो करने में फोकस करिए। नाम तो अगर आपने शुरुआत में ही चेंज कर लिया तो बेटर है, फिर आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे। बट ऐसा नाम रखिए जो बिजनेस पर फोकस करे, बिहार के क्षेत्र पे फोकस करने की बजाय। राइट, अब आप कहीं उत्तर प्रदेश कैब, बिहार कैब, हरियाणा कैब, इससे आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। आप ऐसी चीज़ें लाइए जिसके अंदर आपको दिखेगा कि कस्टमर सर्विस है, स्केल है, आप रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। आपकी आपकी बिजनेस की तरक्की उन चीज़ों से होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। इसलिए समय रहते हुए इसे चेंज कर लेंगे तो आप ही आगे सुकून में रहेंगे। फिर लोग आपकी कंपनी को इसीलिए ऐप करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि आप अच्छा काम करो, वरना तो हर आदमी के लिए बड़ा आसान है इस तरह से रखना। ये मेरा नजरिया है, बट ट्रेडमार्क वाले इसीलिए ट्रेडमार्क देते भी नहीं। आइडियली आपको अगर इंक्यूबेटर में 4 साल पहले जब आप ये नाम रख रहे थे और शुरुआत कर रहे थे, इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही आपको किसी को गाइड कर देना चाहिए। तो ये जो नाम वाला चीज है ना, ये देखिए, अगर आप ओला को देखें तो ओला कंपनी का नाम ओला नहीं है, वो सिर्फ उसके ब्रांड का नाम ओला है। कंपनी का नाम ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, कोई नहीं जानता है। लेकिन ओला को लोग उसके ब्रांड से जानते हैं, उसकी सर्विस से जानते हैं। अब अगर उसकी लीगल एंटिटी का नाम ओला नहीं है, उसकी लीगल एंटिटी का नाम ANI टेक्नोलॉजीज है, तो एज विक्रांत वाज सेइंग, ये आपके सर्विस और आपकी रिकॉग्निशन पे और आपकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसे स्केल करेगा। क्योंकि वरना वरना तो हर कोई ना कोई चीज करके कॉपी कर सकता है। तो इट्स इट एंड मोर सो, अगर आप फोकस कर रहे हैं कैब के बिजनेस को, तो सिर्फ एक सिटी पे या एक स्टेट पे क्यों करें? आप ऐसा नाम रखिए कि आज आप बिहार एक्सपैंड करके कल आप नेपाल में एंटर कर जाएं, कल आप यूपी में एंटर कर जाएं, तो बिहार कैब्स यूपी में तो कोई कनेक्ट ही नहीं रहेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, अभी आप जो देख रहे हो ना, वो सिर्फ आप एक स्टेट एक सिटी के लेवल पे देख रहे हो। अगर आप उसको एक्सपैंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ उसको और एक्सपैंड करना चाहेंगे आप उस बिजनेस को, तब ये नाम आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा कि भैया बिहार कैब्स आके बंगाल में क्या कर रहा है, या बिहार कैब्स आके यूपी में क्या कर रहा है, या दिल्ली में क्या कर रहा है। तो ऐसा कोई नाम रखना चाहिए जिसका अप्रोच आप इजीली किसी भी सिटी या स्टेट में एक्सपैंड करें, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर, बिकॉज ये कोई डेलिकेसी या फूड इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लोग उस ब्रांड से कनेक्ट करके वहां पे खाने जा रहे हैं या कुछ नहीं। सो दैट्स वेयर दोज नेम्स व्हिच हैव अ डेमोग्राफी डिफाइंस, बिकॉज फूड इंडस्ट्री में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है कि वहाँ का ट्रेडिशनल कुछ है, बट कैब्स का बिजनेस तो इट्स ग्लोबल, इट कैन गो एनीवेयर। सो सो दैट इज व्हाट आवर सजेशन वुड बी। आई मीन, अगर आपको IP ये क्या कहते हैं ट्रेडमार्क नहीं भी मिल रहा है, तो आई एम मोर देन हैप्पी कि आप उसको नाम चेंज करो, रादर देन उसी के लिए फाइट मार के ट्रेडमार्क हो, बिकॉज वो आपकी आपकी ग्रोथ को लिमिट करेगा सिटी के स्टेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल, I can see a Yes. question. Sustainable innovation, animal feed from organic waste. We do collect organic food waste from hotel vegetable. I'm looking for investor. आनंद जी, आपका क्वेश्चन पढ़ा हमने, अच्छा है आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, ये तो एक अच्छा स्टेटमेंट है, बट प्रयास क्या किया है उस पर फर्क पड़ता है।
आप अपना डेटाबेस बनाइए, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस में कौन से इन्वेस्टर्स हैं, 6 इन्वेस्टर्स को चूज करिए, उनको बहुत पॉइंटेड तरीके से ईमेल लिखिए, बताइए कि भाई हम ये करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में इस तरह की कंपनी है, इस तरह की कंपनी नहीं है, इसलिए हमने आपको अप्रोच किया है, इस स्पेस के अंदर हम आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पहले डिस्कशन के लिए बुलाइए। जब आप उन्हें बहुत पॉइंटेड शार्प एनालाइज करने के बाद ईमेल लिखेंगे तो 100% आपका जवाब मिलेगा। इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट पे कम से कम इस वक्त 12 से 15 इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लगा दीजिए अपने टीम मेंबर्स को आपके लिए मदद करने के लिए। थैंक यू। Next question. बताइए, और कोई क्वेश्चन है फ्रॉम द रूम? There are so many people typing, things on laptop. I'm sure they must have recorded few questions. तो जैसा आपने बोला कि बिहार बिहार के स्टेट का नाम है वो आप का नाम से लेकिन नाम दिया था। I can't hear it sharply. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। कोशिश कीजिए दोबारा, कोई नहीं। हेलो, जी बोलिए। हाँ बोलिए। कुछ उधर इशू है। Subodh ji, any other question or should we do the closing remarks with me and Vikrant? सर एक हम क्वेश्चन लेते हैं सर, और कोई ले नहीं रहा है सर। जी बोल। बिहार, जैसे कि आप बिहार के बारे में जानते हैं, बेसिकली एक रियल स्टेट है सर, एंड वी आर वेरी rich in agriculture produce, dairy लीजिए, कुछ भी लीजिए, dairy plus agriculture। तो मोस्टली जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्टार्टअप का, फूड सेक्टर, ये आपका जो इस एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, इनफैक्ट दे हैव डन वेरी गुड, ही आल्सो फ्रॉम बिहार वाले, वो रिसेंटली काफी बड़ा फंडिंग लिया है। मोस्टली सर ये हमारे यहाँ जो स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा ये है सर, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का बिहार के अंदर। कैसे इसको हम लोग सपोर्ट करें? उसकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं रहता है एग्रीकल्चर में, जो हम मोस्टली कहते हैं ड्रिवन नहीं। कैसे हाउ टू सपोर्ट सच टाइप ऑफ स्टार्टअप टू बी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट को, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प चाहिए होगा। तो आपका विषय हाउ टू सपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप। अनुभव, आप बताएं क्या कैसे सपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से आते हुए? एग्रीकल्चर में देखिए, जो भी टेक रिलेटेड सपोर्ट है वो तो एग्रीटेक फोकस जो इंक्यूबेटर्स हैं वो लोग कर रहे हैं। बाकी एग्रीकल्चर में नाबार्ड का और क्या कहते हैं 2-3 अदर इंक्यूबेटर्स हैं हैदराबाद में, जिनका फोकस एग्री रिलेटेड स्टार्टअप्स को, एग्री और डेयरी के भी इंक्यूबेटर्स हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई फंडिंग स्कीम में भी आ रहा है कि एज अ इंक्यूबेटर बीआईए भी उसके लिए अप्लाई, वेंचर पार्क भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है, स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड फंड्स जो आते हैं। सो वो एक चीज है। एंड एग्री पे इक्रीसैट का भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है अभी टू सपोर्ट का स्टार्टअप, बट थोड़ा थोड़ा आई मीन the focus is little bit on little bit more focused on technology led interventions in the agriculture sector. Plain say for instance somebody is making fertilizers, somebody is starting a small rice mill, those kind of startups fall into the traditional bracket of agriculture. I don't think there is a very active enablement apart from government Ministry of Agriculture and all that kind of support. But if you need startup related support in the agriculture domain, I think there should be some level of innovation that that these incubators are looking forward, and also for getting the government fund to support these agri related startups, you need to apply for a government fund specifically focusing on agriculture, which is definitely available.
for any of the incubators to apply. Direct startup के लिए तो नहीं है, it is through the incubators only. Thank you. Second question. Hello. Hello. हाँ जी सर, हाँ सर. We are having many startups. I think they are needing fund. तो आपके साथ कैसे कोलैबोरेट करें इनको? Suppose there are some very good startups out there. हमको लगता है कि they can be scalable and we are looking for investors. तो हमारे जो स्टार्टअप हैं, VIA के जो स्टार्टअप हैं, तो अगर इनको अगर फंडिंग का सपोर्ट चाहिए सर, तो कैसे आपसे कनेक्ट करें, सर से कैसे कनेक्ट करें, क्या रास्ता होगा, ये थोड़ा सा इसमें भी आपका हेल्प चाहिए। हमारी, हाँ, आई मीन सक्सीड साइड से लीजिए या IIIT साइड से लीजिए, देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आपको यू नो you just have to send their decks to us and our team will evaluate, and eventually if we feel there is a synergy to invest, we would definitely invest. The other way is to organize a demo day with all your startups and get bunch of investors to come only specifically to the incubator, not open for every startup. So incubated startups जितने हैं उनके लिए एक demo day organize किया जा सकता है, जिसमें we can call in investors from different cities, or we can have an online demo day also, जिसमें one by one each of these startups will pitch and we will help you to get bunch of investors to listen. Like हमने जैसे बिहार startup conclave हुआ था, उसमें most of the people that came was through through our network, through me, and so उस हिसाब से उनको these are the two very direct approaches that we can do. I would suggest you organize demo days rather than reaching out to investors one by one with each startup and all. इससे बेटर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार इकोसिस्टम के बारे में भी पता लगेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार के स्टार्टअप्स को भी समझने की कोशिश करेंगे rather than startups खुद से जाके अप्रोच करते हैं. विक्रांत, any inputs you have on this? नहीं, वो सही सजेशन है. मेरा सजेशन एडिशनली ये होगा कि एक एक्सेल शीट के अंदर 1 लाइनर 2 लाइनर अपडेट डाल दीजिए अपनी 50 कंपनी 60 कंपनी जो आपके इंक्यूबेटर के साथ एसोसिएटेड है, कि वो लोग ये करते हैं, ये उनकी डिटेल्स हैं. और जब आप उस तरह की समरी एक्सेल शीट को अपने इन्वेस्टर्स को नेटवर्क में शेयर करेंगे, तो वो आपको बताना शुरू करेंगे कि हाँ, उन 60 स्टार्टअप्स में से कौन से 15 के साथ वो बात करना चाहेंगे. सो that is one way for you to reach out and start your conversation and create excitement about them. Second is definitely organizing a demo day. Demo day के अंदर कराने से एक तो आपकी incubator की एक large scale visibility बनती है, branding में आपको exercise मिलती है. Plus this is where you do a industrial way of providing a platform for your startups to talk to investors regularly. हर इंसान की 60 कंपनी के साथ मीटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करके 3 या 4 से मिलेगा. उन 4 लोगों की कॉन्वर्सेशन 15 लोगों से कराना इज लाइक 60 सेपरेट मीटिंग्स, विल सक अप द एनर्जी. उसकी बजाय आप एक डेमो डे कराएंगे महीने में, साल में 3 या 4, तो आपने एक फॉर्मुलेटेड अप्रोच से उनको कराया, और जैसे जैसे वो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, आपके स्टार्टअप फाउंडर को भी एक एक्सपोजर मिला कि इन्वेस्टर्स के सामने कैसे पिच करना है, आपके सपोर्ट स्टाफ को भी पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे इस तरह की इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, और इन्वेस्टर्स भी ग्रेजुअली इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे. ये सब कुछ मेरिट ड्रिवन होता है. अगर आपके अच्छे स्टार्टअप होंगे तो लोग अपने आप आपको नोटिस करना शुरू करेंगे और आपको हेल्प करना शुरू करेंगे, राइट. ये चिकन एंड एग नहीं है. ये स्टार्ट वहीं से होता है कि जिस सोर्स पे क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही. हीरे को खदान में से निकालने के लिए लोग अपने आप आ जाते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि यहाँ हीरा है. एंड वो जो फॉर्मेट की विक्रांत बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग अपना डेमो डे कराते हैं, तो उसका मैं आपको वो बुकलेट भेज दूंगा. सो वो आपको हेल्प कर देगा कि कैसे क्यूरेट करके लिस्ट बनानी है और उसके बाद कैसे वो प्रोफाइलिंग करनी है. उसमें 2 ही 3 लाइन के डिस्क्रिप्शन होते हैं ईच स्टार्टअप के बारे में. तो वो मैं आपको भेज दूंगा. तो वंस दैट यू गेट रेडी इंटरनली बाय योर टीम, then we can but I would still prefer that you organize a demo day rather than
reaching to investors one by one. उससे आपका अपना भी मेटल पता लगेगा और लोगों को भी समझ में आएगा कि that the BIA is very serious and taking serious measures to help the companies that are incubated there. We will arrange that demo day है ना सर, ये जो अभी आपने बताया ये very good suggestion, और हमको लगता है कि very shortly एक मेरे को सर वो kindly send me the detail in which format you are looking for, और हमारे यहाँ से वो अगर इस period कम से कम 15-20 अच्छे स्टार्टअप को we will start with और देखते हैं what we can get from that. बिल्कुल बिल्कुल, वो आस्ते आस्ते करिएगा। आज हैदराबाद या बैंगलोर बन रहा है क्योंकि 2003-2004 में कोई इस हिसाब की चीजें स्टार्ट किया था, तो 10 साल लगा है कि इट्स नॉट ओवरनाइट जर्नी दैट एनी इकोसिस्टम इवॉल्व्स। एंड अगर आपको इकोसिस्टम को इवॉल्व करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरनल इवेंट करने होंगे रादर देन अपने आप को बाहर ले जाके लोगों से के सामने। बेटर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार में बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस करवाइए, ज्यादा से ज्यादा these kind of startup pitching करवाइए, इन्वेस्टर्स इनवाइट कीजिए। वो अप्रोच ओवरऑल इकोसिस्टम को बढ़ाएगा। तो जब इकोसिस्टम बढ़ेगा ना तो फुटफॉल आएगी, वरना वही होगा कि आप कभी बैंगलोर लेके जा रहे हैं अपने स्टार्टअप्स को, कभी हैदराबाद लेके आ रहे हैं, कभी दिल्ली भेज रहे हैं, तो हमेशा आउटसाइड अप्रोच रहेगा। यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा कि ज्यादा लोगों को पता लगेगा और आपको सही तरीके की इनपुट्स भी मिलती रहेगी। और प्रमोद सिन्हा जैसे लोग हेल्प कर रहे हैं तो उनके तो एक फोन कॉल पे लोग आ जाएंगे। तो that has been very I take the event due to some previous engagement. Vikrant missed the event, वरना विक्रांत हर जगह he makes sure that he is there to help. तो वो बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव में नहीं आ पाए थे, बट लेकिन you organize a demo day. I'm 100% sure SucSEED, IIIT, all of us would be more than happy to come and in person and meet all your startups if we are given a prior notice. We will be more than happy to come, and so demo day organize कराइए। फॉर्मेट स्टार्टअप प्रोफाइलिंग का फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा, उसके हिसाब से आप प्रोफाइलिंग करवा दीजिए, and that would we are there to help in whichever way possible. I think सुबोध जी हमारा टाइम ओवर हो चुका है, 4:10 हो रहा है ऑलमोस्ट। So any closing comment Vikrant that you have? आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ, वेल राउंडेड। सो हमारी तरफ से सुबोध जी, पूरी टीम, सबको शुभकामनाएं कि आप शुरू कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। आई एम श्योर जब आप इसे रेगुलरली करते रहेंगे तो यू गाइस विल गेट बेटर एट इट। हम लोगों से जितनी मदद हो पाएगी हम करने के लिए अपना कमिटमेंट ऑलरेडी शो कर चुके हैं। बाय द वे सुबोध जी, जस्ट आपको FYI बताना चाहता हूँ कि SucSEED की टीम ऑलरेडी बंच ऑफ बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव के स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मेल्स देखा था साहिब की तरफ से जो SucSEED की टीम में है। तो बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव के स्टार्टअप्स के साथ अभी भी डिस्कशन में बड़ी एक्टिवली पार्ट ले रही है SucSEED, जो विक्रांत की फंड है। और एक तो जनरल पार्टनर भी बिहार से हैं, तो उनके लिए तो उनका एक अपना अफेक्शन है अपने स्टेट से। हम भी नॉर्दर्न इंडिया के बेल्ट से हैं, तो हम कोशिश तो रहेगी पूरी कि अच्छे लोगों को मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहें। थैंक यू सर। ये सिद्दीकी साहब हमारे सीईओ साहब प्रोवाइड फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। Mr. Anubhav Tiwari sir, Mr. Vikrant Varshney sir, we would like to extend our sincere thanks and gratitude first you for sparing your valuable time in this important session. What you have shared with us actually that is valuable for us and for our startups. You have pointed out so many important things which our startups will take care of that and they will do it. We hope that we will continue to get your support in future as well. These words I would like to say once again. Thank you. Appreciate you hosting it and inviting us. We look forward to working more with the BIA team. Thank you so much, Subodh ji. Thank you, everyone. Bye bye. Bye bye.